So, dear brothers and sisters and faculty members, my name is Ishfaq and I am from Organic Chemistry. I have prepared my PPT under the supervision of Professor Khalid Zaman sir. My seminar topic is hydrogen economy. What is basically a hydrogen economy? It was coined by John Bockris in 1970. What is hydrogen economy? Hydrogen economy is the replacement of present fuels and use hydrogen as a future fuel for future generation and also for the current generation. As far as my topic is concerned, I will focus on its content first, then we'll discuss its problems and finally come to its conclusion part. Let me start my presentation. These are the contents of my presentation, namely conventional fossil fuels, alternative source of fossil fuels, hydrogen, a versatile energy source, hydrogen fuel production methods, challenges ahead, hydrogen storage, future expectations, and finally coming to the conclusion. Firstly, I will discuss conventional fossil fuels. What are conventional fossil fuels? These are actually natural fuels formed from the dead remains of organisms buried under the earth millions of years ago. These are the natural fuels, namely coal, petroleum, natural gas are some of the natural fuels. These are the dead remains of organisms which have been buried under the earth millions of years ago. These are exhaustible natural resources. They are going to replenish. Once we use them, they will be finished. So we can't get them instantly. It will take millions of years again to form them. That means we have to look at the alternative way for the energy sources. Firstly, I will discuss it briefly. What are the fossil fuels? I will describe it in simple words. Actually, ये जो fossil fuels हैं, एक पीरियड हुआ करता था 150 मिलियन ईयर्स अगो, जुरासिक पीरियड. उससे पहले भी जिसमें डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे एक्चुअली, उससे पहले भी एक पीरियड हुआ करता था 320 मिलियन ईयर्स अगो, कार्बोनिफेरस पीरियड. वही से इसको ओरिजिन आया. जितने भी डेड रिमेन्स थे वो जमीन के नीचे दब गए. एक्चुअली हुआ क्या था, जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आता है तो उसका पर्टिकुलर लाइफ स्पैन जो है आफ्टर इस डेथ या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जब डेथ हो जाती है तो वो मतलब उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है. लेकिन कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जैसे कि बोन्स एटसेट्रा. उस टाइम पे भी जो भी ऑर्गेनिज्म थे तो उनकी डेथ होने के बाद कुछ पार्ट्स उनके रह गए तो वो जमीन के नीचे दब गए. आप समझो कई सारे जनरेशन आए वो जमीन के नीचे दब गए कई सारे लेयर्स. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे तो उनके ऊपर सॉइल मतलब उनको सैंडविच लाइक कवरेज पे उन्होंने सैडमेंट्स थे, किले थे, सैंड्स थे, तो उन्होंने उनको कवर अप किया. और ऐसे ही कई सारे लेयर चढ़ते गए तो फाइनली एक सैंडविच टाइप लेयर बन गई. फाइनली क्या हुआ कि इनका कांटेक्ट एयर से नहीं हुआ तो इसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाई. तो फाइनली आज हम देख रहे हैं इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है तो हम इसको एनर्जी एज एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी आती है वो हम इन्हीं डेड रिमेन्स से डिराइव करते हैं. इन्हीं डेड रिमेन्स से हम एनर्जी जैसे कि नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है, these are the sources of energy. अब फॉसिल फ्यूल्स हम इनसे एनर्जी डिराइव करते हैं तो ये हमारे लिए फ्यूल करते हैं. हमारे पास कई सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि हम खाना भी खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट उसमें वो भी एज ए फ्यूल एक्ट करता है. जो भी चीज़ हमें एनर्जी देता है तो उसे हम फ्यूल बोलते हैं. तो फिर मैं ये स्लाइड डिफाइन करूंगा. Fossil fuels are going to produce a significant amount of energy for human market. That means these are not eco-friendly. ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं करते क्योंकि ये लॉट ऑफ कार्बन एमिशंस रिलीज करते हैं. These are the coal, gasoline, diesel, oil which produce huge amount of carbon monoxide, carbon dioxide, and other greenhouse gases which are hazardous to environment. And
द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस अराउंड 2.1, ये डेटा दिया गया है यहाँ पे 2.13 बिलियन टन ऑफ CO2 पर ईयर और एस्टिमेट, ये एस्टिमेटेड डेटा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा भी रिलीज होता है। ये एक सिंपल डेटा है। तो बहुत सारे डेटा है दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन, बट वी आर डिपेंडेंट, ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन दिस फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज 85 एनर्जी सेक्टर होली डिपेंडेंस ऑन दिस फॉसिल फ्यूल्स। एक सर्वे हुआ था 2018 में, इवन 2012 में भी, वहाँ से हमने पाया ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर व्हीकल्स, जो भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो जो वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो इन्हीं से आती है, फॉसिल फ्यूल से। इसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स की ओर जाना पड़ेगा। वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड द ग्रीन हाउस गैस रेडिएटिव फोर्सिंग क्या 2.3 बिलियन की नीचे सर। CO2 is greenhouse gas which increase radiative forcing and contribute global warming with ocean. सर एक्चुअली जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो ये ओजोन में ट्रैप हो जाता है। तो वहाँ पे ये ट्रैप होने की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग में वो तो ग्लोबल रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है जो टर्म है, व्हाट इज दैट? रेडिएटिव फोर्सिंग है जो ये रेडिएट करता है, एमिशन। जब हम इसको बर्न करते हैं सर, एक्चुअली जब जो भी हम बर्न करते हैं तो वो एनर्जी देता है, ऑब्वियसली एनर्जी के साथ ही कुछ एमिशंस करता है। ओशन एसिडिफिकेशन कैसे करता है सर? क्या ओशन एसिडिफिकेशन लिखा है ना? यस सर, जब वो एमिशन ऊपर एटमॉस्फेयर में चढ़ जाता है तो वहाँ पे जब एसिड रेन की फॉर्म में वो नीचे जाता है तो pH की लेवल जो है वो खराब हो जाती है वहाँ पे, तो फिशेस वगैरह में वो हैजार्डस बन जाता है। फिर हमें ढूंढना पड़ेगा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, कई सारे एनर्जीज हैं हमारे पास या बट वो उनमें भी प्रॉब्लम्स है, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उनमें। जैसे कि सोलर एनर्जी कहीं पे अवेलेबल होती है तो कहीं पे नहीं, क्योंकि जियोग्राफिक लिमिटेशंस आती है, स्पेसिफिक एरिया लिमिटेशंस आती है। विंड भी ओशंस एट से टोटे हमें विंड एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं, तो कई सारे लिमिटेशंस इसमें भी है। इसलिए हमें बेस्ट फ्यूल ढूंढना पड़ेगा जो कि कभी ख़त्म ना हो, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट फ्यूल होगा, जो कि कभी ख़त्म ना हो, इजीली अवेलेबल हो, एबंडेंस में हो, एक्सेसिबल हो और चीप हो। वो फ्यूल हमें चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे ये डायग्राम शो किया गया है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जो हम ये इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, स्टेबिलिटी होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 और हाफ ऑफ ओजोन। तो हम अगर उस H2 को कैप्चर कर सकते हैं तो हम इसको एज हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बट प्रॉब्लम अगेन अराइज होती है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं यहाँ पे वो अगेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक एनर्जी को बनाने के लिए हम दूसरी एनर्जी का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स अगेन वी आर यूजिंग एनर्जी। तो ये कॉस्टली होता है, तो ये फ्यूल कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो उसको कॉमन आदमी खरीद सके, वो चीप हो, कमर्शलाइज हो, लार्ज स्केल पे, दैट इज वाई। फिर हम इसको अगर हम बोलेंगे हम इसको सोलर एनर्जी पे थ्रू हाइड्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो वहाँ पे इसकी सुब्लिमेशन हो जाएगी अगेन। बट सोलर एनर्जी के लिए हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लेट में उसको ट्रैप करने में मदद करेगा, मगर वो अगेन कास्ट होगा। कैटालिस्ट बनाने के लिए अगेन हमें इसका बहुत ज़्यादा कास्ट लगेगा। वाटर स्प्लिटिंग के लिए प्योर वाटर चाहिए, जो जिसमें आयन वगैरह होंगे, जैसे हमारे पास साल्टी वाटर है, ओशन है ना? यस सर, वो भी यूज कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। उसमें इम्प्योरिटी आएगी ना, तो डिफरेंट कंपाउंड्स भी दे, वहाँ पे अगर हम उसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो बाकी कंपाउंड वो भी स्प्लिट हो जाएंगे। यस सर, अगर हम साल्टी वाटर देखेंगे ना, यस सर, वो हम कई मेथड्स के हिसाब से अगर हम इसको प्योर वाटर को फॉलो करें, यहाँ पे सपोज प्योर वाटर, ठीक है ना,
उसको सेपरेट करेंगे तो वाटर का इसमें जब हम वाटर से कुकिंग करते हैं तो वो हमें अगेन हाइड्रोजन देता है। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए पहले। सपोज हमने इतना लो क्वेश्चन हमने फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, बट एज अ साइंटिस्ट हमें ये है कि कॉन्सेप्ट हम वाटर से एज अ फ्यूल जनरेट करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, यस सर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ्यूल बनाने के चक्कर में हम वाटर को यूज कर रहे हैं ना, वाटर भी उतना नहीं है, मतलब अगर हम देखेंगे ओशन एक्चुअली उसमें वाटर है, लेकिन उसके बाद जो बाकी वाला पोर्शन वाटर है वो कम है, यस तो वाटर का ऐसे नहीं होगा उसमें। सर वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम कंबशन जब करते हैं ना वो अगेन देता है हमें वाटर, क्योंकि वो एयर के साथ कंबाइन मतलब अगर हम रिसाइकल करेंगे ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है एक्चुअली सर। इससे क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट जो देता है ना वो अगेन वाटर होता है अगर हम इस कंबशन करते हैं सर, तो वाटर की कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये एबंडेंस में नेचर में पाया जाता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, ये फ्री सोर्स में नहीं होता है, इट इज नॉट इन एलिमेंटल स्टेट, ये कंबाइंड बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, उसकी वजह से। बट 75% ऑफ द अर्थ क्रैश कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो आज तक हम हाइड्रोजन से अगर आपने कुछ पेपर पढ़े होंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी से, आज तक साइंटिस्ट क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए हाइड्रोजन फ्यूल करने को? वी आर यूजिंग yes sir, we are using but not at the large scale. इसके कई साइंटिस्ट सारे अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो रहे? सर इसके ड्रॉबैक्स है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इसकी लीकेज प्रॉब्लम है, इसको हम इंसुलेट कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बताया, कई सारे मेथड है, सिटी रिफॉर्मिंग मेथड है, बहुत सारे मेथड है, हम कर सकते हैं, बट वो आगे कास्ट ही पड़ेगा। बट साइंटिस्ट क्यों कर रहे हैं? हम मैं बोल रहा हूँ सर, तो मैं तो अगर ऐसा बोल रहा हूँ और अपनी प्रॉब्लम है रियल सर हम हमने ऐसे से पढ़ा है। हम कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इसकी प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, अगेन लीकेज प्रॉब्लम है, स्टोरेज प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिस्ट को बेटरली फ्यूचर में, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिस्ट का काम है, वो फ्यूचर में इसको अगर मॉडिफाई करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी की कमी है, अभी ये हम लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर पाते, तो कोई भी कार हो उसमें हम 5% हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, CNG के साथ मिक्स करते हैं, कई सारे कार्स है, आप देख सकते हो चाइना वर्ल्ड लीडिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी कंट्री मानी जाती है, जहाँ पे 250 प्लस फ्यूल स्टेशन पाए जाते हैं, एंड इवन जापान में भी 160 प्लस फ्यूल स्टेशन पाए जाते हैं, वो लार्ज स्केल पे करते हैं यूज। बट हाँ, फ्यूचर में ये बैटर फ्यूल बन सकता है अगर टेक्नोलॉजी मॉडिफाई होगी, तो टेक्नोलॉजी मॉडिफाई होगी तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम इसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, स्टोरेज इसकी स्टोरेज, क्योंकि हाइड्रोजन जो इसका लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से ये फैल जाता है, तो इसके लिए हमें बड़े बड़े ये गैस या सर उनकी जरूरत होगी। तो अगर हम बट हाइड्रोजन का एक बेनिफिट है, हम उसको तीनों फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, बाय अप्लाइंग प्रेशर, टेम्परेचर, हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर दे सकते हैं -253 डिग्री सेल्सियस, तो वो इजीली लिक्विफाई हो सकता है। बट अगेन वो अगर हम एक बाइक लेंगे, बाइक में हम कितने कूलर साथ रखेंगे सर, एक बाइक लेंगे हमें बहुत सारे कूलर्स की जरूरत पड़ेगी वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसको अगर हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें ह्यूज प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, 350 to 700 बार। अगेन वो जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे हैंडलिंग तो उसमें भी वो फिर उसका कॉस्ट कास्ट आ जाएगा। अगेन फ्यूल को होना चाहिए जो चीप होना चाहिए, तो तभी हम इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं। Hydrogen as a versatile fuel. Hydrogen's abundant clean efficient is derived from the diverse domestic resources. Hydrogen जो नेचर में है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 75 as I have mentioned earlier, 75 of the rest of the universe, and even stars are made of hydrogen in plasma state. We have hydrogen everywhere. हम वाटर के साथ है, कार्बन कंपाउंड्स के साथ है, हाइड्रोजन की कमी हमें कभी भी महसूस नहीं होती, इट इज इन अबंडेंस। तो हम इसको हम अब देखते हैं हाइड्रोजन है जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो डेफिनेटली दिस विल रिप्लेस ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड विल बी आवर फ्यूचर फ्यूल, क्योंकि इसकी जीरो एमिशन होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं कर रहा है एटमॉस्फेयर में, दैट इज व्हाई इट इज द बेटर फ्यूल फॉर द फ्यूचर जनरेशन।
It can act as transportation fuel, building industries, vehicle fuel, anything. इलेक्ट्रिसिटी में से प्रोड्यूस कर सकती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। हम बम भी बना सकते हैं, यस सर, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। Mostly. Hydrogen is not found on the earth in pure element. जैसे I've already discussed this part. ये सर ये पार्ट मैंने already discuss किया। ठीक है, ठीक है। आराम से हमने सारी प्रेजेंटेशन डिस्कस कर ली, स्लाइड नहीं किया। तुम अच्छा दे रहे हो। मैथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड्स, जैसे कि कई सारे प्रोडक्शन मेथड्स है। नेचुरल रिफॉर्मिंग, जैसे कि ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं उसे, नेचुरल गैस है। बट इसमें क्या करते हैं, नेचुरल गैस में इसको हम ब्लू हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम पे हाइड्रोजन हम डिराइव करते हैं नेचुरल गैस से, तो उसका CO2 जो इमिट होगा या एमिशन होगी CO2 उसको हम ट्रैप कर पाते हैं, उसके बाद उसकी स्टोरेज कर पाते हैं, तो उस स्टोरेज को कमर्शलाइज कर सकते हैं, स्टोरेज को अंडरग्राउंड कर सकते हैं या उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, जो हम फर्दर यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस, ऑयल्स एटसेट्रा। फिर बायोमास, अगेन बायोमास से भी हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे हम बैक्टीरिया यूज करते हैं तो वो अगेन हमें हाइड्रोजन देता है। इलेक्ट्रोलिसिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस मेथड्स। नेचुरल गैस, नेक्स्ट स्लाइड। उस मेथड जो आता है वो हमें स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड आता है। एंड इसमें एक डेटा दिया गया है 48% ऑफ द गोल्ड प्रोडक्शन, बट एक डेटा वो है जो 90% ऑफ द गोल्ड प्रोडक्शन, खास तौर पर यूएसए में इसमें 95% ऑफ द हाइड्रोजन प्रोडक्शन इस मेथड। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में सिंपली मीथेन लेते हैं या कोई भी हाइड्रोकार्बन, तो उसको हम स्टीम देते हैं। स्टीम की प्रेजेंस में वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर ट्रीट करते हैं हम मिथाइल ऑक्साइड के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको हम CO, उसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ या किसी भी ऑक्साइड के साथ, वो फर्दर क्वांटिटी के साथ H2 के साथ है हमें थर्मल एनर्जी। वाटर गैस कितना नर्वस ना बस। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लिटिल बिट, इसको हम इलेक्ट्रोड डालते हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये ब्रेक डाउन होता है H2M हाफा में। इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिसिस, हाई प्रेशर इलेक्ट्रोलिसिस। हाई प्रेशर से भी कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर से भी कर सकते हैं, बट बेसिक क्राइटेरिया जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अगेन दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉस्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ये हाई कॉस्ट, बट ये हाई कॉस्ट पे पड़ जाता है सर। उसके बाद गैसिफिकेशन मेथड, यहाँ पे हम कोल देते हैं या पेट्रोल कोक देते हैं या बायोमास देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम स्टीम देते हैं या उसको फिर इंसर्ट करते हैं गैस फायर में, फिर हाई टेम्परेचर स्टीम देते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये दिखाया गया है CO2 इसने ट्रैप किया है 90% आता है CO2 परमानेंटली कैप्चर, इसको फिर हम कैसे कैप्चर करते हैं इसको सर। ये एक्चुअली ये कोल और पेट्रोल इसको हम गैस फायर हाइड्रोजन निकल के आएगा वो इसमें ट्रैप हो, इसमें इंस्टॉल हो नहीं अपनी कोल और ये पेट्रोलियम क्वालिफाइड कोल, क्योंकि ये सर ये नॉर्मल कोल नहीं होता, ये वेस्ट मटेरियल जो कोल कहते हैं। माय क्वेश्चन जो है आपका कोल है वहाँ पे, ठीक है ना? यस सर। गैसिफायर आपने लगाया, उसके बाद हाइड्रोजन निकल के आता है वहाँ, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, ठीक है ना? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, फिर आपने लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली कैप्चर, ठीक है ना? यस सर। इसको कैप्चर करने के कुछ मेथड पता है कैसे कैप्चर करते हैं? यस सर, हम ये यहाँ पे शो किया गया ना हाइड्रोजन पावर स्टेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन इज देयर एनी डाइऑक्साइड केमिकल मेथड टू ट्रैप दिस? कैप्चर कैसे किया कार्बन डाइऑक्साइड? सर गैस फायर के लिए गैसिफायर से दोनों चीजें निकली ना, हाइड्रोजन भी कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन आपने हाइड्रोजन पावर स्टेशन में यूज किया, बचा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या होगा? अच्छा जब सर रिलीज होगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जब बना वहां से कहीं उसको तो कैप्चर जाएगा। करेंगे ना, लेकिन कैसे? मतलब इज देयर एनी केमिकल मेथड? सो दैट इज इट।
विल लुक इनटू इट। बस वो उसको हो जाता है तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं इतना पड़ा है। इसके अलावा है गैसिफिकेशन नेटवर्क। एक्चुअली दोनों की साइड एस वाले मगर एक्चुअली भी एनकरेज करा कि अगर भी प्रेजेंटेशन ऐसे दी तो सम फिगर पर दिस कुछ एक्सप्लेन करा हमसे तो एक्सप्लेन कर मिस्टर है कैसे करें एक्चुअली एक्चुअली इमोशन को फेस की सर ये क्या है इसमें रेफरेंस दिए मतलब मानो से कुछ दिए। ठीक है आप उसके बाद आता है चैलेंजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इसका बड़ा चैलेंज है। स्टोरेज प्रॉब्लम आता है वो डिस्कस क्योंकि इसमें इजीली स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो ये लाइट गैस माना जाता है दैट इज व्हाई इट ऑक्युपाइज ह्यूज वॉल्यूम। उसके बाद फ्यूल सेल लाइट वगैरह में भी हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स में क्योंकि उसकी लॉन्गर लाइफ एक्सपेंसी ये चीज़ें हम इसकी एक्सपेंसी इंक्रीज कर सकते हैं तो हम इसको बेटर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। और सेफ्टी मेजर्स है क्योंकि ये जो हाईली कंबस्टेबल फ्यूल माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को अगर थोड़ी सी भी स्पार्क मिलेगी तो वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है एयर की प्रेजेंस में क्योंकि एक हुआ था 1986 में एक चैलेंजर था एयरक्राफ्ट तो उसमें से हमने एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हुई थी। उन थोड़ी सी स्पार्क प्रोड्यूस हुई थी तो ये ब्लास्ट ये भी एक माना चैलेंज है जो वो करते हैं फ्यूचर में स्टार्ट आउट होगी। आपने लिखा है परसीव्ड सेफली है कंपेयर टू गैसोलीन हाइड्रोजन इज सेफर। यस सर। ये इससे सेफ होता है गैसोलीन से? गैसोलीन इज पेट्रोल है ना, पेट्रोल से सेफ है? हाइड्रोजन सबसे सेफ होता है। ओके सो फिर आपने भी बोला फट गया वो आपने बोला कंबस्टिबल है बट सर उसको हम यूज़ कर सकते हैं और कंपाउंड्स के साथ या मतलब सीएनजी के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम 100% नहीं लेते हैं वहाँ पे जितना खतरनाक होता है खतरनाक होता है हाइड्रोजन। गैसोलीन से भी? नो सर I'm not saying I'm saying in Okay, so both are dangerous, huh? Okay. hydrogen storage takes place. Hydrogen storage takes place. Hydrogen can be stored in the secure form or can be reformed on board vehicle from other fuels. That means हम इसको अगर एक कार रन करेगी हम उसको कुछ टाइम भी स्टोर कर सकते हैं। इवन प्लांट्स पे भी स्टोर कर सकते हैं। Even can be stored as liquid, but it must be kept at very cold temperature, about minus cryogenic temperature हमें maintain करना पड़ेगा जो कि -200 जो कि again biggest challenge है। Stores in solid state materials like metals। हाँ हम इसको metal hydrides, carbon nanotubes and metal organic frameworks, metal organic जो कि partition polymers है इसमें भी हम हाँ वो देखो वो जो आपने एक इमेज